اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج 27ویں پارے کی تلاوت ہوئی اور 27ویں پارے سے پہلے کل 26ویں پارے میں چند چیزوں کی جو اہم چیزیں تھیں، سورۃ الحجرات کی تلاوت ہوئی اور سورۃ الحجرات کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یہ جو سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو سمجھنا یہ کافی آسان ہے۔ ویسے تو قرآن خود بہت آسان ہے، لیکن اس صورت میں معاشرتی معاملات کے حوالے سے بہت اچھا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے۔ اب یہ جو اس کی پہلی آیت آئی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم لوگ جب ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر رب العالمین کو کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش بالکل قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت آئی ہے، اس پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب اس حکم کے بعد ایک قدم بھی تم آگے نہ بڑھانا۔ یعنی کہ کسی معاملے کے اندر اگر اللہ کا کوئی فیصلہ موجود ہے تو منوعاً اس فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک جگہ آیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کے تمہارے رب کی قسم کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے معاملات کے اندر، اپنے مسائل کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو حکم تسلیم نہ کر لو، فائنل تسلیم نہ کر لو۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، صرف حکم تسلیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حکم تسلیم کرنے کے بعد تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے اللہ کے نبی کا حکم مانا، تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ گیا، اس حکم کے بعد ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے، اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ قدم تو قدم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قدم تو قدم تم اپنی آوازوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کی کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ قدم تو قدم اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ایسا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تم باتیں کرتے ہو، ایسے نہ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زور زور سے آوازیں سے باتیں کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ صرف آواز بلند کرنے سے، صرف آواز بلند کرنے سے تمہارے اعمال بات کی جا رہی ہے ایمان والوں سے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو حج اور جہاد کے معاملے بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر ایک کلیئر بات بتائی جا رہی ہے کہ قدم تو قدم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غلط ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے چل کے بیان ہوا کہ ایمان والوں، میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اس سورت کا ترجمہ بالضرور خود پڑھیں تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہاں یہ بات آئی کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم،
کہ کوई मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो मर्द उनसे बेहतर हो। जब हम लोग अमूमन आपस में जब बैठे होते हैं तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि किसी का दिल जो है वो दुख जाता है, वो बोल नहीं पाता। बाज़ लोग ऐसे चर्ब ज़बान होते हैं कि वो दूसरे को बिल्कुल नॉकडाउन कर देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मजाक ना उड़ाओ, दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाओ। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरन मिनहुन, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उनसे बेहतर हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे के क्या ना करो, ऐब ना लगाओ। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना किसी को बुरे लक़ब दो। बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, जो लोग ये काम करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना ये कैसा है, ये बुरा नाम है। ईमान के बाद फिस्क के अंदर चले जाना ये बुराई का काम है, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। उसके बाद अगली आयत क्या आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज्यादा गुमान करने से इज्तनाब करो। हम लोग अमूमन लोगों के बारे में गुमान करते हैं ना कि उसने ये किया होगा, किसी के घर पर चले जाते हैं, घर पर अगर वो नहीं आ रहा तो फिर गुमान खुद ही करते हैं कि बैठे हुए तो हैं घर में बड़े मियाँ, और बच्चों से कहलवा दिए कि घर पे नहीं है। ये दिल में गुमान हो रहा होता है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि देखो, अपने ताल्लुकात को अगर तुम मजबूत करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ताल्लुकात में शैतान की आमेजिश ना हो, उसके वसवसे ना आए, तो ये चीजों इनके ऊपर तुम कारबंद हो जाओ कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, तुम ज्यादा गुमान करने से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि इत्म, क्योंकि बाज गुमान जो है वो गुनाह है। वला तजस्ससू, और एक दूसरे की टोह ना करो, तजस्सुस ना करो। वला तजस्ससू, एक दूसरे की टोह ना करो, किसी की टोह में ना पड़ जाओ कि फलाना क्या काम कर रहा है, फलाने की क्या मामलात हैं, फलाने के क्या मसाइल हैं, जरा पता तो करो। नहीं, वला तजस्ससू हुक्म है, नहीं करना ये काम। और अगले अल्फाज हैं, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और क्या ना करो, गीबत ना करो, गीबत ना करो, एक दूसरे की गीबत ना करो। और ये मामला हमारे, देखें, ये जो माशरती मसाइल के जो चंद अहम पहलू हैं, रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर बड़ी कारी ज़र्ब लगाई है कि देखो, तुम मोहब्बत के रिश्ते इख्तियार करना चाहते हो, तुम ताल्लुकात बनाना चाहते हो, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो ऑफिस के कोलीग्स हो, चाहे वो दोस्तों अहबाब हो, इनको तोड़ने की ये चीज़ें रब्बुल आलमीन ने बयान की कि वो गीबत ना करना। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। मुर्दा भाई का गोश्त का मतलब ये है कि एक भाई आपके सामने आपका मौजूद नहीं है और आप उसकी गैर मौजूदगी के अंदर उसकी बुराइयों के बारे में, उसकी कोताहियों के बारे में, उसकी नाफरमानियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तुमको तो इससे घिन आएगी, घिन आएगी। उसके बाद सूरह क़ाफ की तिलावत हुई, और सूरह क़ाफ की तिलावत में हमने इंसान को पैदा किया, आयत नंबर 16, कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं हम उनसे वाकिफ हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। हमें इस चीज का इल्म है, शायद तुमसे ज्यादा तुम्हारा इल्म है। पिछली जगह कुरान के अंदर ये गुजरा है कि यअलमु खाइनतुल आयुन, वो तुम्हारी ये आंखों की जो तुम खियानत करते हो इससे वो वाकिफ है। वमा तुख्फी सुदूर, और तुम्हारे सीनों में जो छुपा हुआ है रब्बुल आलमीन उससे भी वाकिफ है। यहाँ अल्लाह ने कहा
कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, कि जिस वक्त दो लेने वाले जाते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बैठा हुआ है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान के मुंह से कोई लफ्ज निकल नहीं पाता मगर ये निगहबान उसको उसकी निगहबानी के लिए तैयार बैठे होते हैं। कि यहाँ पर ये बंदा मुंह से कोई लफ्ज निकालेगा और ये रजिस्टर के अंदर उसका नामा आमाल दर्ज करते चले जाएंगे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची, यही है जिससे तू बिदकता फिरता था। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर फूंक दिया जाएगा, वादा अज़ाब का दिन यही है। वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद, और हर शख्स उस तरह आएगा कि उसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। अल्लाह ये फरमाते हैं, लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हादा, यकीनन तू उससे गफलत में था। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया। फ़बसरुकल यौम हदीद, फ़बसरुकल यौम हदीद, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद, इसका हम नशीन फरिश्ता कहेगा, ये हाजिर है, ये हाजिर है, ये जो मेरे पास था। फरिश्ता उसे क़यामत के दिन लेकर आएगा और फिर अब अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, ये बंदा हाजिर है जिसके ऊपर तूने मुझे निगरान मुकर्रर किया था, मैं इस बंदे को लेकर आ चुका हूँ। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, अलक़िया फ़ी जहन्नम, अलक़िया फ़ी जहन्नम, डाल दो जहन्नुम में हर काफिर को, हर सरकश को, हर नाफरमान को जहन्नुम के अंदर डाल दो, जहन्नुम के अंदर डाल दो। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिम मुरीब, जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुजर जाने वाला था और शक करने वाला था। अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखर, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, बस उसे सख्त अजाब में डाल दो। क़ाल क़रीनुहु रब्बना रब्बना, इसका हम नशीन शैतान कहेगा, ए परवरदिगार, मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये शैतान कहेगा अब अल्लाह से, मैंने तो इसे गुमराह नहीं किया था। ये शैतान अब अल्लाह से कहेगा कि मैंने तो इसे गुमराह नहीं किया था। वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद, ये तो खुद ही दूर दराज की गुमराही के अंदर मौजूद था, इसका तो दिल खुद ही गुमराही के रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। मैंने तो इसे गुमराह नहीं किया, मैंने तो इसे गुमराह नहीं किया। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाएगा, मेरे सामने झगड़ने की बात मत करो। अल्लाह शैतान को और बंदे से कहेगा, अब मेरे सामने झगड़ा मत करो, तुम तो पहले ही तुम्हारी तरफ वईद और अजाब भेज चुका था। और उसके बाद आगे क्या है? मेरे यहाँ बात बदलती नहीं है और ना मैं अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाला हूँ। यौमा नक़ूल, और उस दिन कहा जाएगा, किससे? लिजहन्नम, जहन्नुम से कहा जाएगा, हलिम तला हलिम तला हलिम तला, क्या तू भर चुकी है, क्या तू भर चुकी है, क्या तू भर चुकी है? और फिर जहन्नुम जवाब देगी, वतक़ूल हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, कि अगर कुछ और ज्यादा भी हो तो मैं तैयार हूँ। ये जहन्नुम जवाब देगी। और फिर वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद, और जन्नत परहेज़गारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला हो। उसके बाद सूरत ज़ारियात की तिलावत हुई और सूरत ज़ारियात में मोमिनीन का बड़ा खूबसूरत एक तरीक़ा बयान किया गया कि जन्नत वाले कौन होंगे। और ख़ास तौर पर आज जो मुत्तक़िफ़ीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मुत्तक़िफ़ीन भी सुने कि जो जन्नत के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में क्या फरमाते हैं? इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक तक़वा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे। आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम, उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता किया उसे ले रहे होंगे, वो तो उससे ही पहले नेकूकार थे। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, कि वो रात को बहुत कम सोया करते थे। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, वो रातों को बहुत कम सोते थे। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, और जब सहरी का वक्त होता था और अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। रातों को क़याम में गुजार देते थे, थकते
तो थक कर थोड़ा सा अगर आराम करते तो फिर दोबारा रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हो जाते, उससे मुनाजात करते, उससे दुआ करते, उससे इस्तग़फ़ार करते कि ए अल्लाह शायद किसी मेरी नमाज में, किसी मेरे जिक्र, किसी मेरी इबादत में कोताही हो गई। ए अल्लाह मैंने अपनी इबादत का हक अदा नहीं किया। मा अबदना का हक़ इबादतिक, मा अबदना का हक़ इबादतिक, जो इबादत करने का हक था वो हक अदा नहीं कर सका। मा ज़करना का हक़ ज़िक्रिक, जो जिक्र करने का हक था वो हक अदा नहीं कर सका। मा शकरना का हक़ शुक्रिक, जो शुक्र करने का ए अल्लाह तेरा हक था मैं हक अदा नहीं कर सका। ये मोमिनीन जो होंगे, ये जो जन्नत वाले हैं, रातों को सोते भी नहीं हैं, थोड़ा सा सोए थे फिर दोबारा खड़े हो गए, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ए अल्लाह जो हमने तेरे लिए इबादत की, इस इबादत के अंदर जो टूट फूट गलती हो गई, ए अल्लाह तू इसको भी बख्श दे। ये जन्नत वालों का अल्लाह ने तज़किरा किया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं कि इनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमुक़िनीन, और यकीन मानों के लिए तो ज़मीन में बहुत सारी निशानियां हैं। अब इसको ज़रा गौर से सुने कि जो यकीन रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ने कहा कि उनकी बहुत निशानियां हैं। वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, जरा तुम अपने आप में तो देखो, क्या तुम अपने आप को नहीं देखते? अपनी इस जिस्म को तो देखो, ये जो 1.5 गज का जो तुम्हारा जिस्म है इसको तो देखो, इसमें अल्लाह ने कितनी निशानियां रखी हुई है। क्या तुम इस दिल को क्या तुम चला रहे हो? क्या ये दिल तुम्हारे कहने से धड़कता है? क्या ये दिल तुम्हारे कहने से खून की सफाई करता है? क्या ये फेफड़े ये तुम्हारे कहने से सांस लेते हैं? क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम इन्हिदाम है, तो इन्हिदाम है, क्या तुम चला रहे हो? क्या ये जो आंखों की बिसारत है क्या तुमने इसके अंदर डाली हुई है? क्या ये जबान के अंदर बोलने की ताकत क्या तुमने इसके अंदर डाली है? क्या सुनने के अंदर तुम्हारी समाज क्या तुमने ये डाली है? तुम अपनी जिस्म की इन सारी चीजों पे गौर करोगे तो तुम यकीनन अल्लाह को पा जाओगे कि ये सारी चीजें अगर कोई किसी के कब्जे कुदरत में है तो वो सिर्फ एक जात है उसके, और तुम समझते हो, तुम जरा अपने ऊपर तो गौर करो, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे जिस्म पर ये जब सफेद बाल आना शुरू होते हैं तो तुम इन सफेद बालों को आने से रोक भी नहीं सकते। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, तुम इन चेहरे पे आने वाली झुर्रियों तक तो तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारी तो ये औकात है। अपने ऊपर गौर करो, अपने ऊपर गौर करो, क्या तुम्हारी बिसारत क्या खत्म हो चुकी है? ये अल्लाह की निशानी है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और तुम्हारी रोजी जो तुमसे वादा किया है ये सब आसमान के अंदर है, ये सब आसमान के अंदर है। अब यहाँ पर सूरत ज़ारियात 27वें पारे की तिलावत का आगाज हुआ, और यही रिज़्क़ के हवाले से एक बात हुई। यहाँ ये आयत आई कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान की जो पैदाइश का मकसद है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, प्राइमरी काम जो है वो अल्लाह की इबादत करना है। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को भेजा था तो सबसे पहला जो घर था वो जन्नत था। जन्नत से इंसान को निकलना पड़ा। आदम अलैहिस्सलाम को वो आया था बदमाश, वो आया था शैतान, उस शैतान ने कहा कि थोड़ा सा खा लो। बाबा ने, मामा ने, अम्मा और अब्बा ने, दोनों ने वो थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जिस्म से उनको बेलिबास कर दिया, और दूसरी चीज जो उनको की, उनको जन्नत से निकाल कर इस दुनिया के अंदर भेज दिया। यानी कि उनका जो असल घर था उस असल घर से उनको निकाल दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमें या इस दुनिया में आदमी को जब किसी को उसके अपने असल घर से कोई निकालता है तो उसकी जिंदगी का फिर मकसद क्या होता है? क्या होता है उसकी जिंदगी का मकसद? उस घर को वापस हासिल करना। तो इंसान को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था तो इंसान को निकालने के बाद उसके दिमाग में, उसके दिल के अंदर एक
पैदाइशी तौर पर एक मकसद हयात मौजूद है कि तुमने वापस अपने असल घर को हासिल करना है, और असल घर क्या है? वो जन्नत है। तुमने जन्नत को हासिल करना है। वो जो बच्चा छोटा सा होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है, तुमने जन्नत हासिल करनी है, जन्नत में अल्लाह से मुलाकात करनी है, उसका दीदार करना है, ये मकसद था। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता चला जाता है, होता जाता है, होता जाता है, तो उसकी फिर ज़िंदगी का मकसद क्या बन जाता है? क्या बन जाता है उसकी ज़िंदगी का मकसद? किस चीज़ के पीछे वो सारा दिन दौड़ और धूप कर रहा होता है? किसके लिए? हाँ, दुनिया, पैसे के लिए कर रहा होता है, पैसे के लिए कर रहा होता है। उससे वो जो उसका असल मकसद था वो भूल जाता है। यहाँ कुरान ने, अल्लाह ने दोबारा बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नात और इंसान की जो पैदाइश का मकसद है, आयत नंबर 56 में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इबादत करना है। तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुमने इबादत करनी है। तुम्हारा जो बुनियादी काम है वो इबादत करने का काम है। ठीक है, अगले अल्फाज अल्लाह क्या कहते हैं? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, ना मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोज़ी रज़ा है, तवानाई वाला है, और वो बहुत ज़ोर आवर है। अब इन तीनों आयतों को जरा समझिए कि एक आयत में अल्लाह कहता है कि तुम्हारा काम इबादत करना है, और दूसरी आयत में कहता है कि अल्लाह ताला वही है जो रोजी पहुंचाने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी काम है वो क्या है? वो तो इबादत करना है, और सेकेंडरी काम जो है, जो सानवी काम है, वो है कि रिस्क की तलाश मुआश। लेकिन ये तलाश मुआश अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे हाथ में है। 12वें पारे की जो पहली आयत कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस जमीन पर जितने जानदार हैं, इन जानदारों की रिस्क की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर है। अब हुआ क्या? इंसान ने क्या किया? जो अल्लाह की जिम्मेदारी थी, रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अल्लाह की। अल्लाह ने की जिम्मेदारी, इंसान ने क्या किया? उस इक्वेशन को तब्दील कर दिया कि जो अल्लाह की जिम्मेदारी थी उसके पीछे खुद लग गया, और सुबह से लेकर रात तक इस काम के पीछे चल रहा होता है। उसकी जिंदगी का मकसद, उसकी दौड़ धूप, उसकी परेशानी सिर्फ और सिर्फ पैसा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपको और तफसीली तौर पर बताएंगे कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस रिस्क को। मेरा एक प्रोग्राम है रिस्क मैनेजमेंट का, अगर मौका मिला इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब इसको मैनेज करते हैं, इसको आधे घंटे का कोई प्रोग्राम इंशाअल्लाह वो हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। उसके बाद सूरत तूर की तिलावत हुई, और सूरत तूर की तिलावत में कि क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हम इस ज़माने पर ज़माने के हवादिस यानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शायर है, कोई काहिन है। फदक्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, आयत नंबर 29। तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है ना दीवाने हैं। ये लोग आपको काहिन और दीवाना कहते हैं, लेकिन दर हकीकत आप नहीं है। उसके बाद सूरत नजम के अंदर रब्बुल आलमीन ये बात फरमाते हैं। हाँ, सूरत तूर में खास ये बात आई कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून 35 कि क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा करने हैं? अम हुमुल खालिकून, या ये खुद पैदा करने वाले थे, या इनको कोई पैदा करने वाला कोई और था? अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, और इन आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला कौन था? किसने इस आसमान और जमीन को पैदा कर दिया? अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिक, और तेरे रब के पास खजाने हैं। किसके पास खजाने हैं? तेरे ही तो रब के पास खजाने हैं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी, क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये सुनते हैं? क्या इनके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं? अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? ये अल्लाह से कहते थे कि ये लड़कियां, अल्लाह के पास क्या है? लड़कियां। ये अल्लाह से कहते थे कि लड़कियां हैं। फरिश्तों को कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह उनसे कहता है क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ सब लड़के हैं? अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्क़लून, क्या तू उनसे कोई उजरत तलब करता है कि ये इसके तावान से भोजल हो रहे हैं? अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, क्या उनके पास इल्म गैब है जिसे ये लिखते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं? तो यकीन कर लें कि फरेब खोर वो काफिर ही हैं, किसी और को वो फरेब नहीं दे रहे, अपने आप को वो
फरेब दे रहे हैं। उसके बाद सूरत नजम की तिलावत हुई और सूरत नजम के अंदर मेराज के हवाले से बात आई। मैं उसका सलीस तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला तारीफ बयान कर रहे हैं, नात गोई कर रहे हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ना वमा यंतिकु अनिल हवा, ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। इनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो तो सिर्फ वही के अल्फाज होते हैं जो रब्बुल आलमीन की तरफ से आते हैं। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उनको सिखाता कौन है? ये फरिश्ते उनको सिखाते हैं। दू मिर्रतिन फस्तवा, जो जोर आवर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर नजदीक हुआ और उतर आया। बकान ख़ाब क़ौसैन औ अदना, सिर्फ अब 2 कमानों के बराबर फैसला रह गया, बल्कि उससे भी कुछ कम। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह ने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। मा कदबल फुआद मा रआ, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, इसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। इंद सिदरतिल मुंतहा, ये बात अल्लाह बयान कर रहे हैं कि इस फरिश्ते को, इस जिब्राइल को अल्लाह के नबी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। सिर्फ एक दफा नहीं, 2 दफा देखा था। सिदरतुल मुंतहा, उसकी असल हालत में, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत के अंदर जो देखा, रब्बुल आलमीन कहते हैं कि दूसरी मर्तबा जो देखा सिदरतुल मुंतहा के करीब देखा था। उसी के पास फिर जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती है वो जो चीज़ जो इस पर छा रही थी। ना तो निगाह बहकी ना हद से बड़ी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। निशानियों में से बाज़ निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। सूरतुन नजम के अंदर ये बात आई कि अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब को मेराज बख्शी। उसके बाद सूरतुल कमर की तिलावत हुई, जिसमें मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा आया। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत का तज़किरा आया कि इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अज़ाब के अंदर मुब्तला किया। उसके बाद सूरतुर रहमान की तिलावत हुई और सूरतुर रहमान की तिलावत में जो अल्फाज अदा होते हैं, अर्रहमान अर्रहमान, अल्लाह का रहम देखें, अल्लाह अपने रहम की बात कर रहा है, अल्लाह अपने बेपाया रहम की बात कर रहा है। जब वो रहम टूट कर अपनी हदों को जब उसने पार कर लिया तो अल्लाह ने कहा अर्रहमान अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, जब वो टूट गया रहम, जब वो रहम जिसने अपनी हदों को तोड़ दिया तो अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला ने फिर क्या सिखाया? अल्लाह ने कुरान सिखाया। अल्लाह ने अपने रहम का तज़किरा किस चीज के साथ किया? कुरान के साथ। मेरे भाई, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने इंसान को बोलने की सलाहियत दी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि देखिए कुरान का हक अदा करें। कुरान का हक क्या है? कुरान का हक ये नहीं है कि उसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए। आप मुतकिफीन हैं और रमज़ान की आखिरी सातें हैं। देखिए, कुरान की एक आयत पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। जितना अजर इस तरीके से पढ़ने में है, अबू दाऊद की एक रिवायत है कि लइन तहदू तअल्लम आयतम मिनल कुरान खैरुल लक अन तुसल्ली मिअत रकअ, कि कुरान की एक आयत को समझकर पढ़ लो। ये कुरान की एक आयत समझकर पढ़ लेना 100 रकात नफिल नमाज से बेहतर है। 100 रकात नफिल नमाज, और 100 रकात नफिल नमाज का मतलब है कि उसके अंदर सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं, 3 आयतें और होंगी, उसमें रुकू भी है, उसमें सुजूद भी है, उसमें दुआ भी है, उसमें दुरूद भी है, उसके अंदर तशहुद भी मौजूद है, उसमें तस्बीह भी मौजूद है, उसमें सलाम भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह ने कहा कि कुरान की एक आयत को समझ कर पढ़ो। देखिए, ये महीना रमज़ान का महीना कुरान के साथ है। इस कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू करें। कुरान का हक है, इसको समझ कर पढ़ा जाए। और ज़रा सोचिए तो सही कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों से पूछते हैं आपने कितना पढ़ा। किसी ने जो है मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, किसी ने 10 साल पढ़े, किसी ने इंटर किया तो 12 साल पढ़े, किसी ने बैचलर्स प्रोग्राम किया तो 16 साल उसने पढ़ा, किसी ने मास्टर्स कर लिया तो 18 साल पढ़ लिया, किसी ने PhD कर ली तो उसने 22, 23, 24, 25 साल पढ़ लिया।
PhD किए किसके लिए? कि मुस्तकबिल संवर जाए। अब PhD जब आदमी करता है तो उसकी उम्र कम 30, 35, 40 साल हो जाती है और टोटल उसने जिंदा कितना रहना होता है? 60 साल। यानी अगले 20 साल को संवारने के लिए उसने ये सारे काम किए। अब इस 20 साल के बाद जो एक और अगली जिंदगी शुरू होने वाली है, वो जो असल जिंदगी है, उसके लिए भी कुछ सोचा क्या? उस मुस्तकबिल के लिए भी कुछ सोचा? अगर नहीं सोचा तो मेरे भाई रोजाना ये मामूल बनाएं कि कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू करें। दूसरी चीज, इसको बाकायदा इल्म हासिल करें। आपकी जितनी भी उम्र है कुरान का इल्म हासिल करें, आलिम दीन बने, अपने बच्चों को हुफ्फाज बनाएं। जितनी भी उम्र है कुरान का इल्म हासिल करें और असातिज़ा के पास जाकर कुरान का इल्म हासिल करें। और अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने अपने रहम को कुरान के साथ जोड़ा है। और रहमान, जब हमारा रहम जिसने तमाम हदों को तोड़ दिया, पार कर लिया, तो फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लमल कुरान। और सूरतुर रहमान में बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ का तज़किरा कर रहा है कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को छुटलाओ। ये नेमत है अल्लाह की, ये अल्लाह की नेमत है, इस नेमत का शुक्र अदा कर। उसके बाद सूरतुल वाक़िआ की तिलावत हुई और सूरतुल वाक़िआ की तिलावत में 3 गिरोह का तज़किरा हुआ। वो गिरोह कि जो दाहिन साबिक़ून अल-अव्वलून हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून का अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया कि उनको बेहतरीन अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। साबिक़ून अल-अव्वलून वो कि जो बहुत ज़बरदस्त, जो सबसे पहले अव्वलीन वो लोग जो ईमान लेकर आए। फिर दूसरा गिरोह जो दाहिनी हाथ वाला था, ये मोमिनीन है, अल्लाह ताला इनको भी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और सिर्फ मैं एक बात बताऊं कि हदीस में आता है कि जन्नत के अंदर जो एक दरख्त होगा, उस एक दरख्त के नीचे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक भी चलता रहेगा तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक जन्नत का एक दरख्त की बात है। और फिर दाएं हाथ वाले लोग होंगे, इन दाएं हाथ वालों का जो खाना होगा वो ज़क़ूम का दरख्त होगा, पीक होगी। इसका तज़किरा बड़ी तफसील से सूरतुल वाक़िआ के अंदर बयान हुआ। और उसके बाद सूरतुल हदीद की तिलावत हुई और सूरतुल हदीद की तिलावत में जो अहम मौज़ूआत आए, मैं 2-3 मौज़ूआत के ऊपर बात करूँगा। एक तो ये कि थोड़ा सा 4-5 मिनट इंशाअल्लाह लगेंगे, उम्मीद ये है कि हम ये बात ख़त्म होगी कि तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। अगर तुम मोमिन हो तो वो तुमसे मजबूत अहद व पैमान भी ले चुका है। और उसके बाद आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू, कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? सोचिए तो सही। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। दरअसल आसमानों और ज़मीनों की मीरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले अल्लाह की राह में खर्च किया और क़िताल किया, यानी कि अच्छे दिनों से पहले जिन्होंने, जब परेशानी का आलम था, जब उन्होंने उस वक्त खर्च किया, जिन्होंने फतह से पहले खर्च किया और क़िताल किया, वो उनके बराबर नहीं, वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किया। उसके बाद अगली आयत में, आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाते हैं कि मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में कौन है कि जो अल्लाह को कर्ज दे? तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? कर्ज हसना कौन देगा? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट दर हकीकत यही है। और अल्लाह को कर्ज, अल्लाह कहाँ कर्ज लेता है? लेकिन अल्लाह का कोई बंदा होता है जो बीमार होता है, अल्लाह का कोई बंदा होता है जो गरीब है, अल्लाह का कोई बंदा है जो बेरोज़गार है, जिसे माल की ज़रूरत है, वो सवाल नहीं कर सकता, वो महरूम है, वो साइल नहीं है, उसकी मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन मदारिस के अंदर, इन दीन के कामों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तबलीग के दीन के अशाअत के काम हैं, इन कामों के अंदर खर्च करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज देना है। मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। और जो फिर अल्लाह ताला को कर्ज देता है तो अल्लाह क्या करता है, उसे बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। और फिर उसके बाद ये आयत आई,
آیت نمبر 20 کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا تھوڑا سا متوجہ ہوں، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے؟ لعب و لہو، لعب و لہو، یہ تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تو کھیل تماشا ہے اور زینت، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر اور غرور اور مال اور اولاد کا ایک دوسرے سے ایک آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ بتلانے کا کہ میرے پاس اتنا زیادہ، میرے پاس اتنا زیادہ، میرا بیٹا یہ، میری بیٹی یہ، میرا یہ مکان، میرا یہ بزنس، یہ تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں فخر، غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی ان لوگوں کے لیے رضامندی ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، در حقیقت دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ یہ رمضان کا مہینہ چند ساعتیں ہیں، چند دن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغفرت کی راتیں ختم ہو جائیں، یہ مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اور ہمارے جو ساتھی معتکفین ہیں، یہ تو ساتھی ایسی استغفار کرنے کا موقع ملا ہے کہ پوری کی پوری بستی کے اوپر ان کی استغفار جو ہے وہ بھاری ہوگی۔ میرے بھائی، ہم سب کے پاس آج یہ موقع ہے، آج یہ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے دوڑو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ کعرض السماء والارض، جس کا جو عرض ہوگا وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگا، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے یہ اللہ کا فضل دیتا ہے، اللہ کا فضل ہے اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا۔ یہ سورۃ الحدید تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔